બેન જય બેસી જાઉં. श्री केदारनाथ की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના યોગી ડિવાઇન ટ્રસ્ટ આપણને અહીંયા એરેન્જમેન્ટ માટે વ્યવસ્થા કરી છે. એમનો હું આભારી છું. સુમનભાઈ તેમણે સરસ રીતે આપણને જે કરી આપ્યું. એન્ડ જેપી જયપ્રકાશભાઈ તરીકે શોર્ટ મને જેપી કર્યું. અને ઓવરનાઇટ મંદિરના પ્રોગ્રામમાં થોડું એડજસ્ટમેન્ટ કરીને આપણા માટે આજે કરી છે. ને આપ સૌ અહીંયા આજે આપણા શ્રીરામ આપણા માટે આટલા દૂર આવ્યા છે. તો આનંદથી સત્સંગનો લાભ લઈએ. અને એક નમ્ર વિનંતી છે બાકીના બધા ભક્તોને પણ કે અધર દેન દેશ આજે આનંદ છે કે આપણે બધા અહીંયા છીએ. પણ શ્રીરામે ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં જ્યારે આશ્રમ પર મારે વાત થઈ હતી ત્યારે કીધું સજેશન આપ્યું હતું કે રેગ્યુલરલી બધા મળો. કાલે પણ શ્રીરામે કીધું છે કે સામૂહિક ભક્તિની એક પ્રાધાન્યતા છે. તો મને સવિશેષ આનંદ છે કે આપણે આટલા બધા અહીંયા છીએ. પણ વિશેષ આનંદ થશે કે આખું વર્ષ આપણે આ રીતે મળતા રહીએ. બધા ડિસ્પર્સ છીએ તો એક સજેશન આપું ખાલી, જે જે એરિયામાં હોય ત્યાં ભલે ગ્રુપ કરે. બીટ સ્પ્રિંગફિલ્ડ, બીટ શિકાગો, બીટ ફ્લોરિડા, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એન્ડ એક દિવસ આપણે એ રીતે મળતા રહીએ. ભવિષ્યમાં શક્ય હશે તો આપણે કોન્ફરન્સ કોલથી પણ કરી શકીએ.
પણ આપણે એ રીતે મહિને એકવાર સંકલ્પ કરીએ આજે અહીંયા છીએ ત્યારે કે આપણે મળીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ. ને મને વિશ્વાસ છે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એ રીતે કરતા રહેશું તો ભગવાન આવતા વર્ષે જરૂરથી 2 વીક પધારશે. ધ થિંગ ઇઝ કે આપણે દરેકને એવું થાય કે ભગવાન મારા ઘરે પધરામણી કરે, પણ ભગવાન એક દિવસ આપણા ઘરે આવે એ માટે આપણે આખું વર્ષ શું કર્યું? એક પ્રશ્ન આપણે દરેકે આપણી જાતને પૂછવો જોઈએ. આઈ શ્યોર કે જેના ઘરે આજે ભગવાન પધાર્યા છે એ વિચારશે કે મારે આવીના વર્ષે શું કરવું છે. આ વર્ષે તો ભગવાને હેતુ કોઈ કૃપા કરીને તમારા એપાર્ટમેન્ટમાં અથવા તમારા ઘરમાં દર્શન લાભ આપ્યો તમને. જેના ઘરે આવ્યા છે, જેની કારમાં બેઠા છે, અથવા જેણે એટલી શ્રીરામે ચર્ચા કરી છે કે હું તમારે ત્યાં આવવાનું વિચારતો હતો, સમય અનુકૂળતાથી નથી આવી શકાય, એ બધાને માટે વિશેષ જવાબદારી છે. આપણા બધા જે અહીંયા આજે દર્શન લાભ મળ્યો છે આપણા માટે પણ વિશેષ જવાબદારી છે કે શ્રીરામ ત્યાંથી અહીંયા આપણને દર્શન કરવા માટે આપે છે, આપણે બધાએ ત્યાં નથી જવું પડ્યું. તો એ જવાબદારી સમજીને આખું વર્ષ આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા રહીએ, સત્સંગ કરતા રહીએ. હું મારું બંધ કરું છું. એક જ વિનંતી, મારી પાસે કેનેડાના ખાલી 5 કે 6 પ્રજ્ઞાનિઝમના નામ છે. સિમિલરલી હસમુખભાઈ માઇટ બી નોઈંગ યુએસમાં કેટલા છે. તો પરિવાર આપણે જ્યારે એવું કહીએ છીએ કે મારે ભગવાન મારા ઘરે આવે છે તો આખું વર્ષ આપણે સંપર્કમાં રહેવા માટે શું કરીએ? જસ્ટ નમ્ર વિનંતી છે, વિચારો ને ફોલો કરજો જેટલું શક્ય હોય એટલું. શ્રીરામ. બપોરનો સત્સંગ આપણે હરીશભાઈના ઘરે જે એડ્રેસ છે ત્યાં જ રાખ્યો છે. આપણને બીજું સ્થળ મળ્યું નથી, પણ ત્યાં કોન્ફરન્સની વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે બેઝમેન્ટ અને બંને જગ્યાએ આપણે બેસી શકીશું. શ્રી ગુરુદેવ ભગવાન કી જય. શ્રીરામ. श्री राम। हम सब आज इस पवित्र देव स्थान में सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्य जो है एक है, सत्य को भिन्न भिन्न नाम रूप से प्रकट किया गया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है जिसको हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में देखा है। आप सब इस पवित्र कक्ष में, हॉल में उपस्थित हैं। हम सबके साथ यहाँ बहुत से महापुरुष और परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों का दर्शन हो रहा है। परमात्मा एक है, परंतु भक्तों की भावना के अनुरूप हर एक व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न है, हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हैं। किसी में सतोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। अपने अपने रुचि और गुणों के अनुसार हम परमात्मा की आराधना उपासना जो है अपने अपने ढंग से करते हैं। एक प्रश्न होता है कि परमात्मा की उपासना क्यों की जाए। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपासीन, मतलब नज़दीक बैठना। हम जिसके नज़दीक बैठते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। परमात्मा में जितने भी सद्गुण हैं, अगर हम सही ढंग से उनकी उपासना करते हैं, उपास्य के अंदर
जो भी सद्गुण हैं उपासक में आ जाते हैं। आप श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के विषय में जानते हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं परमात्मा की आराधना उपासना में अपने आप को इस प्रकार से समर्पित कर दिए कि उनका अहम लेश मात्र भी नहीं रहा। और हनुमान जी के विषय में जो एक समाज में धारणा चली आ रही है कि हनुमान जी जो हैं ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मचारी का क्या तात्पर्य है, उसको कभी अगर आपने सोचा हो, समझा हो। ब्रह्म जैसी जिसकी चर्या है, आचरण है। हनुमान जी महाराज ने कभी अपने आपको ब्रह्मचारी होने का दावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य उनमें स्वाभाविक घटित हुआ। उन्होंने कोई ऐसा संकल्प नहीं किया कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेते तो उनमें एक अहम पैदा हो जाता, एक अहंकार पैदा हो जाता। जैसे रामचरितमानस में आप सबने शायद पढ़ा हो, परशुराम जी जो हैं भगवान श्री राम के समक्ष अपने आप का परिचय देते हुए, अपने अहम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे को नहीं जानते। आप देखेंगे परशुराम जी जो हैं भगवान के अवतार हैं, फिर भी समाज की जो समस्याएं हैं, रावण इत्यादि उस समय तत्कालीन समाज की समस्या थी त्रेता युग की, उसका समाधान परशुराम जी नहीं कर सके। परशुराम जी के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इतना उनमें शौर्य है, शक्ति है, परंतु उस शौर्य और शक्ति का उपयोग केवल प्रतिशोध की भावना के लिए हुआ। तो व्यक्ति में जो सद्गुण हैं उनका भी अगर अहंकार हो जाता है तो वो सद्गुण नहीं रह पाते। श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज जो हैं उनमें ब्रह्मचर्य घटित हुआ है। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। और आप अगर प्राचीन आदर्श महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हनुमान जी का जो जीवन है उनमें कहीं असफलता का नाम नहीं है। हनुमान जी अपने जीवन में सदा सफल रहे, सदा सफल रहे। ये जो जीवन की सफलता का रहस्य है, हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है। जिस कार्य में हम हाथ डालें उसमें हमको सफलता मिले, हमारा कार्य सिद्ध हो। उसके लिए हमको हनुमान जी से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, हनुमान जी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी का जीवन जो है, सर्वप्रथम बालपन में उन्होंने ज्ञानार्जन के लिए सूर्य की तरफ एक छलांग लगाई थी। बाल समेर अभिभक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। एक प्रश्न उठता है जो त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर हैं, हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान का जो प्रतीक है प्रकाश, प्रकाश स्वरूप जो सूर्य हैं, उनको पाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई। लोग कहते हैं कि हनुमान जी छोटे बालक थे,
भूख के कारण फल पाने के लिए नहीं, परंतु वास्तविक में उनको साधारण फल की अपेक्षा नहीं है। जो जीवन का परम फल है, परम लक्ष्य है ज्ञान। हम सब प्रकाश के उपासक हैं। भारत शब्द का अर्थ होता है भारतात् प्रकाश, भारतात् ज्ञान। जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रकट करना ज्ञान का कार्य है। तो हम सब जब उपासना करते हैं, हम देख रहे हैं देवताओं के सामने दीप प्रज्वलित है, हम भगवान की निरंजन आरती इत्यादि करते हैं। ये प्रकाश के बिना, वैसे हमारे यहाँ तो बड़ा पवित्र शब्द है स्वर्ग, नर्क। नर्क न अर्क, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है। अर्क कहते हैं सूर्य को, न अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, उसको हमने नर्क कहा। स्वर्ग, जहाँ प्रकाश है, उसको हमने स्वर्ग कहा। तो हनुमान जी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, परंतु मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंज सम। अगर मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा के सदृश गुरु मिल जाए तो भी उसको ज्ञान नहीं होता। रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं 60 सुधरई सत्संगत पाई। 60 व्यक्ति जो है वो सुधर जाते हैं, परंतु मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख है वो नहीं सचेत होता। ये मूर्ख और 60 में अंतर क्या है? अगर आप किसी शब्दकोश में देखेंगे, आप पाएंगे 60 और मूर्ख पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु वास्तविक में 60 जो है न जानने के कारण, जिसको हम कहेंगे अज्ञान, और मूर्ख जो है जानने के अहंकार से भरा हुआ है। ना जानने पर उसको ज्ञान तो है नहीं, समझ तो है नहीं, परंतु उसके अंदर अहंकार है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अगर सोच ले कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कोई भी अध्यापक उसको पढ़ा नहीं सकते। हम जब अंदर से ये स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर अज्ञान है, तब कोई उसको ज्ञान दे सकता है। और जिसको पहले से अहंकार हो जाता है, और संसार में अधिकांश लोगों की स्थिति ये है कि हम सब जो हैं मोह को ही ज्ञान का स्वरूप मान बैठे हैं। मोह अर्थात अल्प जानकारी, थोड़ी जानकारी, यथार्थ जानकारी नहीं, भ्रांत जानकारी, उसको हमने ज्ञान समझ लिया है। तो ज्ञान के लिए 2 वस्तुएं आवश्यक हैं। अंतःकरण में ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की प्यास, और उसके उपरांत सद्गुरु की प्राप्ति। अगर अंदर से ज्ञान की पिपासा नहीं है, इच्छा नहीं है, अभिप्सा नहीं है, तो गुरु मिल जाए तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो श्री हनुमान जी महाराज जी जो हैं, ज्ञानार्जन के लिए सूर्य की तरफ छलांग लगाए। प्रकृति ने एक रहस्य उद्घाटित किया। कहा जाता है उस समय ग्रहण का पर्व था, जिसके कारण राहु की जो छाया है सूर्य को ढकना चाह रही थी। तो राहु जो है जब सूर्य की तरफ आ रहा था, उसने देखा कि बीच में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने उस तमोगुण प्रधान राहु को प्रहार किया। ज्ञानार्जन में सबसे पहला शत्रु है तमोगुण। आलसी व्यक्ति जो है, प्रमादी व्यक्ति जो है, ज्ञानार्जन कभी नहीं कर सकता। ये आलस और प्रमाद जो है तमोगुण के कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण की प्रधानता है तो सही अर्थों में वो ज्ञानार्जन नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने तमोगुण के प्रतीक
राहु के ऊपर प्रहार किया। राहु ने जाके इंद्र से, अर्थात इंद्र रजोगुण का प्रतीक, निवेदन किया कि सूर्य को किसी वानर बालक ने आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है। इंद्र वज्र लेके पहुंचे और वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी की हनु, ये थोड़ी जिसको कहते हैं, इस पे आघात हुआ। हनुमान जी पृथ्वी पे गिरे, परंतु गिरने से पूर्व पवन देव ने उनको, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन के आशीर्वाद से माता अंजनी ने गर्भ धारण किया था, इसलिए पवन देव ने उनको रख लिया। पवन देव बड़े कुपित हुए कि मेरे पुत्र के ऊपर इस प्रकार से इंद्र ने, एक नादान शिशु, एक छोटा बालक अगर कोई भूल कर दे तो उसको इतना बड़ा दंड दे देना कहाँ की समझदारी है। देवेंद्र, देवताओं का राजा, इस प्रकार का प्रयोग करे। इंद्र देव और अन्य देवता जो हैं, पवन के कुपित होने पे, हम सबके शरीर में अगर पवन कुपित हो जाता है, ये बात व्याधि क्या है, पवन का कुपित होना। तो जब पवन देव कुपित हुए, पवन देव ने अपनी संचरण शक्ति को रोक दिया, जिसका परिणाम यह आया कि सब देवता इत्यादि पूरे सार्वभौम अस्तित्व में एक विक्षोभ पैदा हुआ, एक विशेष प्रकार का विक्षोभ पैदा हुआ। सब देवता त्रसित हो गए, परेशान हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके पवन देव के पास पहुंचकर निवेदन किया कि हम सबसे भूल हुई है, पवन देव आप क्षमा करें। पवन देव ने कहा कि इस छोटे बालक के ऊपर इस प्रकार से आघात किया गया और ये बालक जो है सूर्य के पास पहुंचना चाह रहा था, सूर्य से ज्ञानार्जन चाहता था। तो सूर्य देव ने स्वयं आगे बढ़ के कहा, ठीक है, समय आने पर मैं इसको विद्या दान दूंगा। भानु पढ़न हनुमान गए। अन्य देवताओं ने उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के आशीर्वाद हनुमान जी को दिए। पवन देव प्रसन्न हो गए, उनके पुत्र को नाना प्रकार से आशीर्वाद दिए गए। तो हनुमान जी महाराज के विषय में हम थोड़ा सा चरित्र का स्पर्श करना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या है। हर एक व्यक्ति जो सफलता चाहता है, अगर वो थोड़ा सा आंजनेय का सहारा ले ले, पवन पुत्र हनुमान जी का सहारा ले ले, पवन पुत्र हनुमान जी की शरणागति स्वीकार कर ले। हमारे जो राम भक्ति के आचार्य हैं, उनमें सबसे पहले आचार्य श्री आंजनेय हैं, श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी ने राम भक्ति का प्रचार किया है और राम भक्ति एक बहुत जीवन में आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है, भगवान श्री राम के शासन काल में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब लोग चाहते थे कि सबका अभ्युदय हो, सब आगे बढ़ें, सब उन्नत हों। इस प्रकार का भाव सबके अंदर भरा हुआ था। एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते नहीं थे। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके मार्ग में अवरोधक बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से वर्तमान युग में, वर्तमान समय में रामराज लाने की कोशिश की है। और ये जो वर्तमान समय है, इस समय राम जी की उपासना बहुत बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि पहले ही कहा गया उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। अगर हम भगवान श्री राम की उपासना करेंगे तो राम जी के गुण हमारे अंदर आने चाहिए।
रामकृष्ण परमहंस जब हनुमान जी की उपासना करते थे तो कहा जाता है कि उनके पूंछ आ गई थी। ये लोगों को तो आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे संभव होता है, इस प्रकार से शरीर की रचना में कहीं दूसरा अंग प्रकट हो जाए, कैसे संभव है। अभी कल ही एक भाई को लेके आए थे जो मतलब उल्टे अक्षर पढ़ पाता है, मिरर में, दर्पण में और जो कागज इत्यादि रख दिया जाता है तो उसके जो उल्टे अक्षर हैं, उसका जो बिंब है उसको वो आसानी से पढ़ लेता है, सीधे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसी ऐसी प्रकृति की कुछ बड़ी विचित्र घटनाएं घटित होती हैं, उनके रहस्यों को हम नहीं समझ पाते, परंतु प्रकृति में क्या असंभव है। तो उपास्य के गुण उपासक में आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। होता ये है कि हनुमान जी महाराज जो हैं सूर्य से विद्यार्जन करते हैं और विद्यार्जन करने के बाद मतलब विद्या का वास्तविक अर्थ क्या है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। काशी जो विद्या का बहुत बड़ा केंद्र है, उसमें कबीर साहब बिल्कुल निरक्षर, जो अपने जीवन में कलम, पेन और स्याही कागज को छुए नहीं, वो बड़े बड़े पंडितों को ललकारते हैं और वो काशी के विद्वान उनका कुछ प्रतिकार नहीं करते। पढ़ पढ़ जग हुआ, अरे पंडितों पढ़ पढ़ के क्यों मर रहे हो। तो कहा क्या करना चाहिए। कहा पढ़ाई का फल जो है विद्या सा विमुक्त है। पढ़ने के बाद अगर हमको आवागमन का चक्कर, जन्म और मृत्यु का चक्कर बना रहा तो वो पढ़ाई किस काम की, वो अध्ययन किस काम का। पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ने के बाद भी मृत्यु को वरण करना पड़े तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। तो कहा कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ढाई आखर प्रेम का, ढाई अक्षर जो प्रेम के हैं उसको पढ़ लो। तो हनुमान जी महाराज जो हैं सूर्य नारायण से विद्या अर्जन किए। कौन सी विद्या, सब विमुक्त है, जो जीव को मुक्त करने वाली है। और उसका परिणाम ये आया। वैसे हम पहले ही बता दिए कि हम हनुमान जी का चरित्र तो बहुत विस्तृत है, उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने अध्ययन में जो अपनी तितिक्षा दिखाई है, जब सूर्य से पढ़ने के लिए गए तो सूर्य नारायण ने कहा कि भाई मैं तो सदैव चलता रहता हूँ, तुमको कैसे पढ़ा सकता हूँ। कहा मैं आपके साथ साथ चलूँगा। क्या साथ साथ चलोगे बात ठीक है, परंतु जो विद्यार्थी है वो सन्मुख हो, शिक्षक के सन्मुख विद्यार्थी बैठा हो तब तो पढ़ाया जा सकता है। कहा ठीक है मैं आपके सामने ही रहूँगा। तो पाछले पगन गम गगन मवन, हनुमान जी महाराज उल्टे चलते हुए सूर्य के सामने रह के विद्यार्जन किए, मतलब कठोर तितिक्षा करते हुए। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो सुख की अपेक्षा करने वाले हैं, जो सुख की आशा करने वाले हैं, जो सुख के इच्छुक हैं, उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में ये चरितार्थ करके दिखाया। और सूर्य नारायण से जब विद्या अर्जित की तो अंदर से उनको बोध हुआ, अंदर से समझ पैदा हुई
कि विद्या का परिणाम जीवन में क्या आना चाहिए, सबसे प्रेम कर सके। और सबसे प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम जो है त्याग और समर्पण सिखाता है। प्रेम शोषण नहीं सिखाता। हम किसी से प्रेम करें, उससे कुछ अपेक्षा रखें, उससे कुछ मांग रखें, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का कलंक है। प्रेमी प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में जब प्रेम के आदर्श की बात कहनी पड़ी तो नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका, ब्रज गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। उन्होंने अपना सुख नहीं सोचा, लोक मर्यादा का त्याग करके, समाज क्या कहेगा उस सब का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारका की तरफ आ गए, उतने काल में गोपिकाओं ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से मिलने की भी कोशिश नहीं की। एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। पहले तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण थे और गोपिकाएं वृंदावन में थीं, बहुत नज़दीक है। कभी भी, और वैसे नित्य प्रति मथुरा जाती भी थीं, परंतु कभी तो ब्रज गोपिकाएं विचार करती हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण से मथुरा में मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि गांव की गंवार ग्वालिनों के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था, तो भगवान के चरित्र में किसी प्रकार की न्यूनता ना पैदा हो जाए। एक आदर्श प्रेम है, अपने प्रेमास्पद के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनता स्वीकार नहीं कर सकते, किसी प्रकार की उनमें कमी ना आ जाए। उनका चरित्र बहुत विस्तार वाला है। तो हनुमान जी महाराज जो विद्या का सही ध्येय है, लक्ष्य है, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो। मुक्ति का अर्थ आवागमन के चक्कर से रहित होना नहीं है। यह भूल के भी मुक्ति का अर्थ ना करें तो अच्छा होगा। बहुत से लोग मुक्ति का अर्थ करते हैं कि बस भगवान में विलीन हो गए और आवागमन का चक्कर मिट गया। कुछ लोग दूसरे प्रकार के अर्थ करते हैं कि भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए, मुक्त हो गए। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान के पार्षद बन गए, मुक्त हो गए। मुक्ति का अर्थ होता है जो अज्ञान की धारणाएं हैं, ऋते ज्ञानान मुक्ति। जो अज्ञान जनित हमारी धारणाएं हैं वो टूट के गिर जाएं और हमको सम्यक प्रकार का बोध, सम्यक प्रकार का ज्ञान अंदर से हो जाए। ऊपर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता, अंदर से प्रकट हुआ ज्ञान हो। तो हनुमान जी महाराज जो हैं उस मुक्ति को पाने के लिए, जो विद्या का परम लक्ष्य है, और परमात्मा से प्रेम के लिए, परमात्मा की अनन्य भक्ति के लिए। परमात्मा की अनन्य भक्ति अर्थात भगवान श्री राम ने बताया, सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये जितना भी चर और अचर, जितना भी ये जड़ और चेतन जगत दिखाई दे रहा है, ये सब मेरे आराध्य का स्वरूप है। मैं उनका दास हूँ, दासो हम कौशलेंद्र से क्लिष्ट करना। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो हैं चर अचर में भगवान श्री राम का स्वरूप देखते हैं और उनका जीवन पूरा जो है राम सेवा के लिए समर्पित है, अर्थात समष्टि चराचर की सेवा के लिए समर्पित है। जहाँ जहाँ राम भक्तों को कष्ट होता है, अर्थात किसी भी रूप में परमात्मा की उपासना करने वालों को, किसी भी रूप में परमात्मा की उपासना, ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण रूप में भगवान की उपासना कर रहा है तो हनुमान जी उस पर कृपा नहीं करेंगे, कोई शंकर जी के रूप में कर रहा है, कोई गणपति के रूप में कर रहा है, कोई लक्ष्मी नारायण के रूप में कर रहा है, कोई
स्वामी नारायण के रूप में कर रहा है, कोई श्रीनाथ जी के रूप में, जिस भी रूप में भी कर रहा हो। हनुमान जी महाराज की दृष्टि में सचराचर परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हनुमान जी महाराज ने उस स्थिति में पहुंचने के लिए फिर कठोर साधना की। हनुमान जी का प्राकट्य भगवान श्री राम के प्राकट्य से त्रेता में। वैसे भगवान श्री राम अनादि ब्रह्म है, आदि अंत को जास न पावा, उनका ना तो आदि है ना अंत है। फिर भी लीला करने के लिए वो त्रेता में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। तो महाराज दशरथ के यहाँ जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, उस समय हनुमान जी की उम्र बहुत हो चुकी थी, काफ़ी बड़े हो चुके थे। ऐसा नहीं कि हनुमान जी उम्र के हिसाब से वो छोटे हों। तो हनुमान जी महाराज जो हैं कठोर तपस्या किए, साधना किए, राम नाम की साधना। इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि प्रकट हो गई। मतलब जब आप जप करते करते मंत्रमय बन जाओ, मंत्र आपके अंग उपांग में सब जगह रमन करने लग जाए, आपके जितने भी रोम छिद्र हैं इनमें से नाम की ध्वनि निकलने लग जाए। आपको मालूम होगा बाबा लालदास जी महाराज, चेतनदास जी महाराज के कृपा पात्र, चेतनदास जी महाराज के द्वारा रचित प्रसंग पारिजात, जिसमें स्वामी जी का जीवन चरित्र है, उन्हीं चेतनदास जी के कृपा पात्र शिष्य हुए बाबा लालदास जी महाराज। बाबा लालदास जी महाराज ने इतना नाम जप किया कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जप करते थे उसके पत्ते पत्ते में से नाम की ध्वनि आ रही थी। बहुत से संतों ने इतना जप किया कि उनकी कुटी में पहुंचने मात्र से वो ध्वनि सुनाई देने लगी। जो योग पात्र हैं उनको, सबको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उतनी क्षमता भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने इतना जप किया, इतना जप किया, राममय हो गए, पूर्ण राममय हो गए। उसके बाद भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित होते हैं। और सेवा में आप देखेंगे हनुमान जी महाराज के अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। ये सेवा का सबसे बड़ा गुण यही है कि हम सेवा करते रहें, परंतु सेवा में हमारे अंदर अहम ना आने पाए, अहंकार ना आने पाए। आप सब रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड में जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। जाम्बवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। कौन से वचन? तो कहा जाता है कि जिस समय समुद्र तट पे सुग्रीव के द्वारा भेजी हुई अंगद के नेतृत्व में एक टोली, वानरों की टोली, एक वानरों का टुकड़ी समूह उपस्थित था और सबके सामने एक समस्या थी। सीता जी जो हैं समुद्र के उस पार बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में। संपाति ने देख के बताया था कि मैं देख रहा हूँ कि सीता जी इस प्रकार से वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप में से कौन व्यक्ति जो है ये साहस करेगा जो सीता जी के पास जाके दर्शन करके भगवान का संदेश देगा और पुनः भगवान की सेवा में उपस्थित होगा। पार जाकर संशय रखा। जितने भी वानर थे उन सब ने पार जाने में संशय बताया। जब मन में कोई कार्य में संशय आ जाए, संशयात्मा
विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान हैं वो ज्ञानार्जन कर लेते हैं, और जिनके मन में संशय आ जाता है वो संशय जो है कार्य को सिद्ध नहीं होने देता। ये श्रद्धा और संशय दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत से लोग कहते हैं पहले श्रद्धा थी परंतु अब नहीं रही, तो ये श्रद्धा नहीं थी, वो क्या था कि अनेक प्रकार के संशय थे, संदेह थे, उनके ऊपर एक झीनी, एक बहुत बारीक परत जो थी श्रद्धा की दिखाई दे रही थी, और उसमें थोड़ी सी खरोंच लगी, थोड़ा सा फट गया तो अंदर से वो संशय उभर के आ गया। संशय और श्रद्धा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो श्रद्धा होगी या संशय होगा। अंगद के विषय में थोड़ी सी एक बात बता दें। अंगद बैठ रहा नहीं डोला। तो अंगद जी महाराज जो हैं, जिस समय भगवान श्री राम सबकी विदाई कर रहे हैं, उस समय अंगद भी वहाँ बैठे थे। अंगद के मन में विचार था कि भगवान की सेवा में पूरा जीवन समर्पित किया जाए। अंगद भगवान की सेवा छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, और भगवान श्री राम जो हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो अंगद के मन में जब इस प्रकार की इच्छा थी तो भगवान ने उसको क्यों नहीं रखा। एक प्रश्न उठता है कि भगवान अंगद को जाने के लिए क्यों कहे। तो उस संदर्भ में रामचरितमानस को पढ़ के देखें आप। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रूताई न बोला। अंगद बैठे रहे और भगवान ने अंगद से कोई शब्द नहीं कहा, परंतु जब सुग्रीव की विदाई हो गई तो अंगद जी उठ के खड़े हो गए, और उठ के खड़े होने के बाद निवेदन करने लगे भगवान श्री राम से, मरती बेर नाथ मोहिम काल बाली, गयो तुम्हारे कोछे खाली, असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जन तजो भगत हितकारी, मैं बालक बुद्धि बलहीना, राखूं नाथ शरण जन दीना। इस प्रकार से निवेदन करने लगे कि भगवान मैं आपका बालक हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा त्याग ना करें। भगवान त्याग नहीं कर रहे थे, परंतु उठ के अंगद ने ये जो प्रभाषण शुरू कर दिया, तो उसके कारण भगवान को अंतःकरण की एक झलक मिली। अंगद के अंतःकरण की छवि स्पष्ट हो गई कि अंगद के मन में एक संशय पैदा हुआ कि अगर भगवान बाद में जाने के लिए कहेंगे तो सब सुग्रीव इत्यादि कहेंगे कि उस समय तो तुम रुक गए थे, फिर क्या ऐसी बात हो गई जिसके कारण लौट के आना पड़ा दिया। तो उससे अच्छा पहले ही भगवान से निराकरण कर लें। तो इसलिए अंगद जी ने अपना प्रभाषण शुरू कर दिया, और भगवान ने देखा कि इनके मन में संशय आ गया है। अगर अंगद का दृढ़ निश्चय होता कि नहीं मेरे को भगवान की सेवा में रहना ही है, तो निश्चित है भगवान अंगद का त्याग नहीं करते। अंगद का मन बड़ा संशय वाला है। जब समुद्र के पार होने की बात आई, उस समय भी अंगद जो है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूँ, ये संशय कुछ फिरती बात, परंतु लौटने के समय में मेरे को संशय है। उनके मन में हमेशा संशय बना है। वो तो हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई। हनुमान जी एक ऐसे आचार्य हैं जिस जीव पे कृपा की है, विभीषण पे कृपा की है, अंगद जी पे कृपा की है। हनुमान जी के साथ जो हुआ, जिसने हनुमान जी का सहारा लिया, उसके मन से संशय निकाल देते हैं। वो केवल संकट मोचन नहीं है, वो संशय मोचन भी है। हमारे अंदर जितने भी संदेह हैं, हमारे अंदर जितनी भी शंका कुशंकाएँ हैं, उन सबको हनुमान जी निकाल देते हैं। और उसी का परिणाम आप देखेंगे रामचरितमानस में कि अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और सीता जी को दाव पे रख दिया।
फिरई राम सीता में हारी, मैं सीता जी को हार जाऊंगा अगर कोई मेरे पैर को हिला दे तो। एक दृढ़ निश्चय हुआ और कोई भी उनके पैर को नहीं हिला सका। दृढ़ निश्चय था, इस प्रकार का निश्चय। पर वो बाद में, पहले तो जब संशय हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि आप सब कोई नहीं जा सकते। और हनुमान जी महाराज जो हैं वो शांत चित्त बैठे हुए हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से निवेदन किया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप में पवन देव के समान बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। घर में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते? हनुमान जी महाराज शांत बैठेंगे। ये देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी की प्रशंसा करता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम जागृत आता है कि मैं कितना महान हूँ, जो मेरी इस प्रकार से लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु हनुमान जी के अंदर उसका कोई असर नहीं। सही उन्होंने विद्यार्जन किया है, सही उन्होंने नाम जप किया है, उन्होंने सही साधना की है, और उसका परिणाम ये है कि हनुमान जी महाराज शांत बैठे हुए हैं। जब जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतार, राम कार्य के लिए आपका भूमंडल पे अवतार हुआ है, और सुनते ही भाई ऊपर पर्वताकार, जैसे हनुमान जी महाराज ने राम कार्य के लिए पृथ्वी पे उनका अवतार हुआ है, तुरंत उनके मन में विचार, फिर तो राम जी ने उस कार्य के लिए योग्यता दी होगी, क्षमता दी होगी। कनक भूद्राकार शरीर, बहुत विशाल शरीर उनका हो गया। ये जब व्यक्ति अंदर से दृढ़ विश्वास से भरा होता है, साधना के गौरी शंकर शिखर पे पहुंचा होता है, तो जैसा जैसा उसके अंदर संकल्प होता है वो वैसा फलीभूत होने लग जाता है, ऐसा फलीभूत होने लगा। और हनुमान जी महाराज पर्वताकार हुए और फिर जामवंत जी से पूछे कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावंती जो हुई। जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हनुमान जी महाराज को अभिमान नहीं कि जामवंत जी से पूछें तो उसमें कुछ न्यूनता पाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे को उचित शिक्षा दो आप, कि मेरे को वहाँ जाके करना क्या है, लंका में जाके करना क्या है। तो जामवंत जी ने कहा इतना कहो तात तुम जाई, सीता ही दे कहो सुधी आई। बस माँ भगवती सीता जी के दर्शन करना और लौट के आके भगवान श्री राम के पास उनका संदेश सुना देना, इतना ही आपको करना है। जामवंत के वचन सुहा है। ये जो वचन हैं जामवंत जी के हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, और उसमें जामवंत जी ने एक निवेदन और किया था, रावण के वध के लिए कौतुक लाग संकट सेना। तब भगवान श्री राम जो हैं रावण के वध के लिए स्वयं आएंगे और साथ में खेल के लिए वानरों को रखेंगे, जिससे खेल की शोभा बने। वैसे तो रावण वध के लिए भगवान श्री राम पर्याप्त हैं, और भगवान श्री राम को ही ये पवित्र यश मिले, ये हम सबका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम अपने ऊपर ऐसा कोई बोझ ना ले लें। इस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। फिर हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं, बार बार रघुवीर संहारी, बारंबार रघुनाथ जी का स्मरण किया, और तरक्यो पवन तनय बल भारी, और रघुनाथ जी का बल उनके अंदर प्रविष्ट है, प्रकट हो गया है, और उन्होंने छलांग लगाई। वो जा रहे हैं उस विषय में, जिम अमोघ रघुपति कर बहाना यही भांति चले वो हनुमान। जिस प्रकार से रघुनाथ जी का अमोघ बाण जाता है, उस प्रकार से हनुमान जी जा रहे हैं। ये रघुनाथ जी का अमोघ बाण मतलब निष्फल नहीं होता। बाण में दो तीन बातें हैं। रघुनाथ जी का बाण, राम बाण रवि हुए जान की, तम बरूद का जात थान की। रघुनाथ जी का बाण जो है राक्षसों के संहार के लिए बिना प्रयास के राक्षसों को वध कर देता है। वाल्मीकि रामायण में उसका बहुत वर्णन है।
थोड़ा सा हम हनुमान जी का चरित्र स्पर्श कर रहे हैं। टाइम भी हो रहा है, घड़ी की सुई चलती चली जा रही है। तो सिर्फ हनुमान जी महाराज ने लंका की ओर जो प्रस्थान किया है उसमें उनका अहंकार नहीं है। जी में अमोघ रघुपति करवाना, जैसे बाण में धनुर्धर की शक्ति काम करती है, बाण में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। बाण धनुर्धर के द्वारा जो खींचा जाता है, प्रतिंचा चढ़ाई जाती है और प्रतिंचा के प्रहार से बाण आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज को स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि ये रघुनाथ जी की प्रेरणा काम कर रही है, रघुनाथ जी की शक्ति काम कर रही है, रघुनाथ जी की सत्ता काम कर रही है, वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अमोघ बाण है, इसलिए अमोघ बाण है। तो ये साधक के लिए जब किसी भी कार्य के क्षेत्र में उतरे तो अहंकार नहीं आना चाहिए। ना तो प्रारंभ में अहंकार आए, ना मध्य में अहंकार आए, ना कार्य पूर्ण होने पे अहंकार आए। हम सब प्रारंभ में तो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ही सब कार्य होगा, परंतु कार्य जब पूरा हो जाता है तो हमको अहंकार आ जाता है। हनुमान जी महाराज जब भगवती सीता जी का दर्शन करके लौट के आए तो भगवान ने पूछा कि कहो हनुमान, किस प्रकार से विशाल समुद्र को पार किया, किस प्रकार से लंका का दहन हुआ। ये जामवंत जी ने सब सुनाया है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित्र जो हैं, हनुमान जी के चरित्र जो है भगवान श्री राम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, और जामवंत जी ने भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का चरित्र भगवान श्री राम को सुनाया है। तो हनुमान जी के विषय में भगवान श्री राम को मालूम पड़ा कि इस प्रकार से इन्होंने समुद्र को पार किया। समुद्र को पार करने के बाद भगवती सीता जी का दर्शन किया, और सीता जी के दर्शन के बाद लंका दहन इत्यादि का कार्य किया। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछे कि आपने ये सब कार्य किस प्रकार से किया। हनुमान जी महाराज चरणों में पड़ गए, कहने गए भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये तो सब आपके प्रताप के द्वारा हुआ है, मेरे में इतनी शक्ति और सामर्थ्य कहाँ कि मैं समुद्र को पार कर सकूं। शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे मैं तो एक शाखा मृग हूँ, मेरी तो सबसे बड़ी विशेषता यही है, एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद जाऊँ। ये जो 7 योजन विस्तार वाला समुद्र है, इसको पार करना मेरी शक्ति सामर्थ्य से बाहर है। सीता शोध हुआ, लंबा प्रसंग को हम नहीं यहीं पूरा कर रहे हैं। सीता शोध के बाद भगवती सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी महाराज को भगवती सीता जी ने बहुत वरदान दिए, बहुत अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। तो हम सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि हनुमान जी की सफलता का रहस्य क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो सबसे पहले सही ढंग से विद्या अर्जन करें, विद्या, और उसके उपरांत विद्या के द्वारा जो साधना मिले उस साधना को अपने जीवन में चरितार्थ करें, और साधना के बाद जो उपास का साक्षात्कार हो जाए उसके बाद अपने आप को प्रकृति की, सार्वभौम सृष्टि की, सार्वभौम अस्तित्व की सेवा में समर्पित कर दें। हनुमान जी महाराज आज भी भूमंडल पे हैं, पृथ्वी पे हैं। जब भगवान श्री राम अपने निज धाम जाने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान साकेत धाम चलो। हनुमान जी ने कहा कि भगवान मैं पृथ्वी पे रहूँगा, और जो राम भक्त किसी भी कारण से, प्रारब्धानुसार या अन्य किसी कारण से कष्ट में होंगे, उनके कष्ट को दूर करने के लिए कोशिश करता रहा। तो हनुमान जी महाराज आज भी पृथ्वी पे राम भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हैं। उन्होंने ये भी निवेदन किया कि अभी आपका चरित्र और नाम सुनने से मेरे को तृप्ति नहीं है। ये प्रेमी का लक्षण है
प्रेमास्पद का चरित्र सुनने में उसको रस मिलता है। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद का नाम सुनता है ना तो उसका हृदय गदगद हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है। तो हनुमान जी महाराज को कोई जब श्री राम जय राम की धुन सुनाता है, जब श्री राम जय राम का कीर्तन सुनाता है, जब श्री राम सुनाता है, तो हनुमान जी को बहुत बहुत आह्लाद होता है, बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। जब कोई रामचरित सुनाता है तो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिक हैं वो। और फिर उनको लगता है कि बस इसको क्या दे दें, इसने रामचरित सुनाया है, इसने भगवत नाम सुनाया है, इसको सब कुछ दे देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बहुत उदार अभी भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम यही बता रहे थे कि अगर जीवन में हम सफलता चाहते हैं तो पहले सृष्टि को समझें कि सृष्टि है क्या। ये जो इतना पृथ्वी पे फैलाव है, अंतरिक्ष में फैलाव है, ये सब है क्या? ये सब परमात्मा का ही खेल है। यह सृष्टि का निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। जैसे स्वर्णकार के द्वारा सोने के आभूषण बना दिए, तो आभूषणों में स्वर्ण के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है। परंतु अब एक बात आपको बताएं, जैसे एक किसान ने गेहूं बोया तो वो घास जैसा आया। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये कौन सी घास है? अरे तुम मूर्ख हो क्या, ये घास नहीं है, गेहूं है, गेहूं, ये गेहूं है, गेहूं है। तो किसान को दिखाई देता है, बोते समय गेहूं है, फसल के रूप में जो घास के रूप में खड़ा हुआ है वो भी गेहूं है, और काटने के समय भी गेहूं। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये घास है, परंतु दूसरे व्यक्ति को घास दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जो सही तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष है, उनको ये सारी सृष्टि जो है राममय दिखाई देती है, परमात्मामय दिखाई देती है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं दिखाई देता। उनको ये नाम रूप दूसरे नहीं दिखाई देते। परंतु जो नहीं जानता है वो इसमें नाना प्रकार के नाम रूप की कल्पना करके अपने आप में मोह के कारण परेशान हुआ करता है। तो हनुमान जी महाराज हम सबको बता रहे हैं कि पहले इस सृष्टि को समझो। ये सृष्टि और कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा श्री राम का ही स्वरूप है। और परमात्मा श्री राम के स्वरूप में अपने आप को सेवा में समर्पित कर दो, परंतु सेवा में अहम ना आने पाए, अहंकार ना आने पाए। ये बात बहुत बार आप सबके बीच में कही गई है कि जैसे एक हाथ उठा के जब भोजन मुख में देता है तो हाथ को ऐसा अहंकार नहीं होता कि मैं शरीर को भोजन दे रहा हूँ। शरीर पे कोई आक्रमण होता है तो ये हाथ रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसको अहंकार नहीं होता कि मैंने शरीर की रक्षा की है। इसी प्रकार से सेवा होनी चाहिए। ये आप अपने व्यवहारिक जीवन में रोज देखते हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं सेवा में समर्पित हैं, परंतु अहंकार नहीं है। इसी प्रकार से हम सबको अगर जीवन में सफल होना है, हम चाहते हैं कि सफलता हमारे चरणों का चुंबन करे, अर्थात हर एक क्षेत्र में हम सफल हों, तो हमको हनुमान जी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो हनुमान जी से प्रेरणा लेके हनुमान जी के जीवन के 3-4 सूत्र स्वीकार कर लेता है, बिना बोध के, बिना समझ के उपासना नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले शास्त्रों का श्रवण कर, प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, भगवान के चरित्र को सुने, उससे परमात्मा के विषय में समझ आए, फिर उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश, फिर अपने जीवन में मंत्र जाप इत्यादि करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। और जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो फिर परमात्मा की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें। बस यही जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। अगर हमने इतना कार्य कर लिया
तो जीवन हमारा सफल है। और जीवन के क्षेत्र में भी हम कदम रखेंगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। परंतु अगर हम इससे विपरीत, हम इस जो ट्रैक को छोड़ के, इस रास्ते को छोड़ के इधर उधर भटकते हैं, तो हमारे जीवन में दुख, अशांति, चिंता, भय, उद्वेग सब प्रवेश कर जाते हैं, सब प्रवेश कर जाते हैं। राजमार्ग छोड़ दिया, हम ऐसे ही बिना मार्ग के चलने लग गए। बिना मार्ग के चलने में तो कंटक भी पैर में चुभेंगे, नाना प्रकार की समस्याएं भी पैदा होंगी। आज हम सबका जीवन जो है इस प्रकार का हो गया है, ना तो हमको लक्ष्य का बोध है कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, और हम बस देखा देखी, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हम भी वैसा करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो उसका परिणाम क्या आने वाला है। उस प्रकार का जीवन जीने वालों के क्या परिणाम आए? जो केवल संसार के लिए दौड़ रहे हैं, उनके जीवन में कभी शांति आई है क्या? उनके जीवन में क्या सुख मिले? तो इसलिए हमको सोच समझ के अपने जीवन का एक ध्येय निर्धारित करना चाहिए। श्री हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, संत महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। संत महापुरुषों के जीवन में भी आप पाएंगे कि उन्होंने पहले कठोर तपस्या करके उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, फिर उसके बाद सेवा में समर्पित हो गए। चाहे भगवान वेद व्यास हों, भगवान शंकराचार्य हों, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, स्वामी नारायण सहजानंद जी महाराज हों, जितने भी संत महापुरुष हुए, उन सब ने, एक महावीर बुद्ध, सब ने यही कार्य किया, सब ने ये कार्य किया। और जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी ऐसा ही किया। 13 साल अज्ञातवास में रहे, वो भारत में आके साधना की और साधना के बाद सेवा में समर्पित हुए। और वो तो लोगों का दुर्भाग्य और उस राष्ट्र का दुर्भाग्य जो उनको स्वीकार नहीं कर सका, उनको स्वीकार नहीं, यहूदी लोग उनको स्वीकार नहीं कर सके। उसके उपरांत उनको सूली पे चढ़ना पड़ा। सूली पे चढ़ने के बाद एक माता ने, शुक्रवार को सूली पे चढ़ाए गए और रात्रि में ही, उस समय प्रकाश इत्यादि की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, रात्रि में ही उनको सूली से उतार दिया गया। उनको तो दंड इस प्रकार का दिया गया था कि मतलब कीलें ठोक दी गई थी, जिससे कि एक एक बूंद रक्त जो है निकलता रहे, वो दुखी हो के, कष्ट भोग के शरीर का अंत हो। परंतु एक माता नहीं देख सकी, उसको उतार दिया। और रविवार के दिन वो फिर जीवित दिखाई दिए। जब जीवित दिखाई दिए तो उनको भय हुआ कि अब फिर कुछ ना कुछ परेशानी है। तो उसके उपरांत फिर वो भारत में पहुँचे और भारत में बौद्ध मठ में उन्होंने शरण स्वीकार की और वहीं उनकी समाधियाँ बनी। वो समाधियों पे हिब्रू भाषा में अभी तक लिखा हुआ है, 2 समाधियाँ साथ साथ हैं। तो ये सब हम सिर्फ ये बता रहे थे कि महापुरुष जितने भी हुए हैं, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, सब ने एक ही कार्य किया है। पहले उस परम सत्य को पाया है, वो परम सत्य को पाने के लिए उग्र कठोर तप किया है। और उसके उपरांत जब उनको परम सत्य की उपलब्धि हो गई है, प्राप्ति हो गई है, तो पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया है। तो हम सबको महापुरुषों के उसी आचरण का अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं ना कि महापुरुषों के पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। जो महापुरुष हमारे लिए एक मार्ग दे गए हैं, उस पर हम सबको चलना चाहिए और उस मार्ग पे चल के ही हम अपने जीवन में कृत्य हो सकते हैं, अर्थात कृतार्थ हो सकते हैं। अर्थात हमको फिर कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, हम अपने आप में परिपूर्ण होंगे। जय श्री राम।
જગ્યા રાખજો થોડી જગ્યા રાખજો જગ્યા રાખજો